जागत जोत, ज़हरा ज़हूर, हाजरा हजूर, चवर छतर तखत दे मालक, दसां पातशाहियां दे आत्मक स्वरूप साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विच महापुरख ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा दलेर सिंह जी ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਵਰੋਸਾ ਹੋਏ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਮੂਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਵਿਚਾਰ, ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਵਿਚਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਬਾਬਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਬਚਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਬਚਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਨੇ, ਕੀਮਤੀ ਬਚਨ ਨੇ। ਜੋ ਬਚਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਕਰੋ ਏ ਕਾਮ, ਆਨ ਤਿਆਗ ਜਪੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਵਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਧਨ ਸੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ, ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ 10 ਵਜੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਅਲੌਕਿਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ 15 ਗੈਲਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ, ਫਿਰ ਤਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸੀ, ਕੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਅਲੌਕਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,
थल्ले बहुत वड्डा एक खूह है नज़र आता है। उस तो अगे गुरु नानक पातशाह जी का जन्म, साधुआं नूं भोजन छकाउण दा सारा ही सीन, जिथे महाराज ने खेती हरी भरी की वो सारा ही सीन। उस तो अगे चल के गुरु अंगद देव महाराज जी का वरतांत, ये सारा ही आपां नूं छोटे छोटे मिल जाते हैं कन्नां नूं लाउण वाले। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਉਸੇ ਬੋਲੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੋ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਸ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੌਲੀ गुरु अमरदास साहब महाराज जी की गोइंदवाल साहब वाली, किवें संगत इशनान करन जाती, किवें विचों चढ़ी आउंदी। मैं तो अंदर वेख के ही दंग रह गया। बौली साहब का सीन वेख के मैं क्या भी असीं ते सचमुच की बौली विच आ खड़ोते। बौली साहब तो अगे गुरु रामदास महाराज का जीवन वरतांत, सचखंड श्री हरमंदर साहब संगत अंदर मत्था टेकन जाती है, बाहर आउंदी है, परिक्रमा करती है। सारी परिक्रमा तो लोगों का खाण पीण का भी है, ढाबे भी बनाए हुए ने, किवें लोग उदों बैठ के रोटियां खाते सन, ट्रकों ते जाते हैं, वो सारा कुछ जिहड़ा ना सीन सारा ही उहदे विच विखाउणा कीता। हरमंदर साहब थड़ा बनिया, प्रकाश नहीं किया, थड़ा बनिया, चाननी लगी है। वो इस करके नहीं कोई संगत करे उस मत्था ही ना टेकन लग पवे। वो बनिया बड़ा अलौकिक नज़ारा है हरमंदर साहब का। फिर जिथे गुरु अर्जन देव महाराज जी पावन पवित्र स्वरूप की रचना कर रहे हैं, लिखा रहे हैं, भाई गुरदास जी लिख रहे हैं, वो नज़ारा फिर गुरु अर्जन देव महाराज जी महाराज का स्वरूप लैके हरमंदर साहब जा रहे हैं। बाबा बुढ़ा जी के शीश के स्वरूप है, तो गुरु अर्जन देव महाराज जी चौर करते जा रहे हैं। उस तो बाद एकदम बाहर आ जाइदा है, जिथे आके गुरु अर्जन देव महाराज की शहादत का प्रसंग लोह बनाई है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰਲੇ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਟੈਂਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਰਾਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ बहुत वधिया अंदर मॉडल बनाया गया। उस तरह खचित, जिस तरह हीरे जवाहरात खचित किए ना अकाल तख्त साहब के, उच्चा स्थान बनाया। गुरु हरराज साहब, गुरु हरकृष्ण साहब महाराज किवें दिल्ली में जदों बीमारी फैली सारियां का इलाज कर रहे हैं। उस तो अगे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का जीवन वरतांत, ते गुरु साहब महाराज की शहादत वो भी वेखण वाली है। किवें लाल हनेरी चढ़ती है गुरु साहब की शहादत, और भाई जैता जी, भाई उदा जी गुरु साहब का सीस लैके आनंदपुर साहब नूं आए ने। उस तो अगे गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज, बाला प्रीतम जी का थोड़ा थोड़ा इतिहास और जंगा। उस तो अगे गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा पहला हरमंदर साहब विखे हुक्मनामा ग्रंथी साहब महाराज स्वरूप लेके आते हैं। ये 12 गैलरियां तैयार, 15 तैयार हो गई, अजे 12 गैलरियां तैयार होनियां। हौली हौली ये सारा इतिहास गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज तो बाद बंदा बहादुर का, जस्सा सिंह आलूवालीए का, मेरा ख्याल है सन 1947 तक सिखां दे उत्ते जो भी इतिहास है उन्हां गैलरियां विच सारा ही सिख इतिहास जिहड़ा है वो संगतां दे सामने आउणा है। बहुत वड्डी ये सेवा की है सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब ने, और उन्होंने मन का ये सी, वेखो उन्होंने अपने काल दौरान बाबा बंदा सिंह बहादुर का चप्पड़ चिड़ी का मैदान उत्थे यादगार कायम की, और 2 वड्डे घल्लू घारे, वड्डा घल्लू घारा कुपर हीड़े का
जिथे किन्ने ही सिंह एक दिन भी शहीद हो गए, बच्चे शहीद हो गए, ਸਿੰਘਣੀਆਂ शहीद हुई, उत्थे भी अस्थान कायम यादगार कायम कीतियां ने। और चौथी यादगार कानूवान का छंभ, जिथे इक्को दिन विच किन्ने सिंघां दीयां शहादतां होईयां। ये 4 वड्डियां यादगारां उन्होंने कायम करवाईयां। एक पंथ दी बहुत वड्डी महान सेवा है, जिन्हों सारे पासियां तो अणगौलिया किया गया सी, और इन्हां ने उस नूं मुड़ सरजीत करके खालसा पंथ का सारा इतिहास जिहड़ा है, साडियां शहादतां गुरु काल तो बाद किवें तसीहे आपां ने चले ने, दुख चले ने, वो सारा ही इतिहास साडे सामने कायम कीता है। ये चारे यादगारां वेखण वालियां ने, पर मेन श्री आनंदपुर साहब की विरासत खालसा। उस दिन सुबह 10 बजे तख्त साहब के मोहरे खुले पंडाल विच दीवान सजना, जिहदे विच तख्त श्री केसगढ़ साहब के हजूरी रागी जथे, भाई कुलजीत सिंह दिलबर का ढाडी जथा, सचखंड श्री हरमंदर साहब के 2 हजूरी रागी जथे, अते अरदास सचखंड श्री हरमंदर साहब जी के हैड ग्रंथी साहब मुखवाक लैणगे। और ये समागम तकरीबन 3 बजे तक चलना है। दूसरे बन्ने खालसा विरासते खालसा का उद्घाटन होना है, जिथे वो इमारत बनी है उस पासे, पर उत्थे भी सारिया ही संप्रदावां नूं संतां नूं बेनती की गई है, निहंग सिंह जथेबंदियां नूं बेनती की गई है, जिन्हें भी महापुरुष ने सर्व धर्म सारियां नूं बेनती की गई है, जो ये थले खुले पंडाल विच दीवान सजना है, उत्थे सर्व धर्म सम्मेलन भी होना है, सारे महापुरुषों ने पहुंचना है, और विशेष तौर पर उत्थे लंगर की सेवा कार सेवा संत बाबा सेवा सिंह जी किला आनंदगढ़ साहब वालियां नूं सौंपी गई है। नाल दी नाल संत बाबा महापुरुष भूरी वाले, जिन्हां ने क्योंकि वो निर्मल संप्रदा दे नाल पंचायती अखाड़े नाल संबंधित ने, जिन्हां ने तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहब बाल लीला गुरुद्वारे विखे बड़ी वड्डी कार सेवा प्रारंभ की है। सिंह साहब ज्ञानी इकबाल सिंह जी, सारा कुछ इन्हां दी देख रेख हेठ होया। बाबा कश्मीर सिंह जी उन्हां वल्लों तख्त श्री केसगढ़ साहब वल्लों फतेहगढ़ साहब वल्लों संगतां दा विशेष लंगरां दा प्रबंध किया गया। ये विशेष समागम ने जथेदार अकाल तख्त साहब, जथेदार तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहब, जथेदार तख्त श्री हजूर साहब और जथेदार तख्त श्री दमदमा साहब, ये सारे सिंह साहबान ने उत्थे हाजिर होना है। सारियां दी हाजिरी विच ये विरासते खालसा का उद्घाटन होना है। समुचियां संगतां नूं बेनती है कि वध तो वध 25 तरीक नूं सुबह 10 बजे उत्थे पहुंचण की खेचल करनी। बेनती की गई सारे महापुरुषों नूं, संतां नूं, सारियां ने सदा पत्र भी भेजे गए ने, कुछ रह गए ने। बाबा जी बाबा भाग सिंह जी, बाबा तेजा सिंह जी आप उन्होंने सारिਆਂ कोले पहुँचाउणगे, इन्हां नूं बेनती की गई है। सो साध संगत अज आपां सारे महापुरुष संत बाबा दलेर सिंह जी बरखत जी, जिन्हां ने जदों शब्द की कथा करते सन जी करदा सुनी जाइए, उन्हां दियां शब्द दियां कथा दियां पुस्तकां प्राप्त होंदियां ने। इस तरह बाबा जगदेव सिंह जी महान विद्वान सन। विद्वान तो जिन्ने महापुरुष बैठे ने ना, सारे ही महान विद्वान ने, एक दो एक चढ़ांदियां, सानू तो कुछ भी नहीं आता। इन्ने महान विद्वान ने, भावें संत बाबा तेजा सिंह जी, भावें शास्त्री जी, संत बाबा जोत सिंह जी बैठे ने ऋषिकेश तो, पिछे बैठे ने मेरे शास्त्री जी, संत बाबा ज्ञानदेव सिंह जी, संत बाबा भाग सिंह जी, संत बाबा गुरबचन सिंह जी, किन्हां किन्हां महापुरुषों का नाम लईए। सारे ही विद्वान पुरुष ने, सारियां दे बचन इन्ने सुंदर ने, जी करदा सुनी जाइए, सुनी जाइए। ये सारे महापुरुष जो निर्मल भेख अपार तास बिन अवर न कोई, कलगीधर पातशाह जी ने आप बख्शिश की है इस भेख से सारे थे।
और कलगीधर पातशाह दियां बख्शिशां दे पूर्ण तौर ते पात्र ने। अकाल तख्त साहब को भी इन्हां सारिਆਂ प्रति पंजे सिंह साहिबां ਵੱਲੋं आदेश किया गया सी भी इन्हां संप्रदावां दा पूर्ण तौर ते सारिਆਂ ਨੂੰ सत्कार करना चाहिए सारिਆਂ। सो जिन्हां महापुरुषों की याद में जुड़ बैठे, मैं हमेशा कहना सिंह साहब जी जे मैं ना कहा फिर याद करा देंगे ने, जिनका दिन मनाते हो उनका अर्शदात भी समझो, जिनका दिन मनाते हो उनकी बात भी समझो। भुल्ला चुका दी खिमा जी। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।